Hello students, welcome all of you in this online class. So today I am going to teach you class 7 mathematics. Okay, this is Firdaus, I am your math teacher. So in our previous classes we have completed our chapter first, that is integers, and recently we are in second chapter, that is in fractions. So in fraction we have done two exercises, that is 2a and 2b. So in 2a we have done the problem based on the comparing of the fraction and comparing of arrange in ascending order and summation and the subtraction of a fraction, and we have also done multiplication of a fraction in exercise 2b. So today I am going to teach you how to divide the fraction. So today I am going to solve exercise 2c, which is based on the division of a fraction. So without any further ado, let's start our class. So here you have given in exercise 2c, first question you have given, that is write the reciprocal of a given fraction. So as I discussed in our previous class, that is what is the meaning of reciprocal, है ना? Whenever you have to write the reciprocal, then you have to change the denominator with a numerator and numerator with a denominator. See here you have given 5 by 8. So reciprocal, or you can also say that multiplicative inverse, दो नाम है बच्चों इसका, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 8 बाई 5, इसको ऑपोजिट कर देना, ठीक है? यानी कि डिनोमिनेटर चले जाएगा न्यूमरेटर पे, ये आपका हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट व्हेनेवर यू हैव गिवन 7. सो सी द डिनोमिनेटर ऑफ 7 इज नथिंग बट व्हाट 1. ओके, सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7 by 1? 7. सो रेसिप्रोकल ऑफ 7 by 1 is 1 by 7. ओके, ठीक है बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4? इन क्वेश्चन नंबर 4 you have given 12 whole 3 by 5. So first of all you have to convert this into, this is which type of fraction is this? Mixed fraction. Okay, because in this fraction you have a whole number and a fractional part. So this is your mixed fraction. So first of all you have to convert this mixed fraction into what? Improper. So 12 5 is 60, 12 for improper, so mixed to improper. What you have to do? You have to multiply this and this. You have to multiply this, 12 5 is 60 and plus 3, so 63 by 5. So what is the reciprocal? Yes, reciprocal of 63 by 5 gives you 5 by 63. ये आपका हो गया, ठीक है? नाउ रेसिप्रोकल जो है मैंने बताया, ये आपका जो सॉल्व हुआ इसलिए बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है आपको डिवीज़न. ये आपको डिवीज़न जो है आपको 10th क्लास तक यूज़ होना है, ठीक है? ये याद रखना है जहन में अच्छे से. सो हियर यू हैव गिवन हाउ टू फाइंड द डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन. सो मेथड है, क्या है? पुट द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़, जैसा है उसी तरह से इसको हमको पुट कर देना है. एंड कन्वर्ट दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड देन राइट द 9 by 14 रेसिप्रोकल ऑफ 9 by 14, दैट इज 14 by 9. बात समझ में आई बच्चों? क्या करना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ रख दो, आप डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और इसको क्या कर दो, 14 by 9 कर दो, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है? अब जो मैं यहाँ से करूँगा, अगर पॉसिबिलिटी है न्यूमरेटर ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे वाला कट सकता है मल्टीप्लाई में. 7 1 7, 7 2 14, सो 4 2 8 by 9 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3 you have given that 8 by 9 divide 16. So here
16 by 1 because in the denominator nothing but 1. So what I said, put the first fraction as it is and convert the division into multiply, then find the reciprocal of this. Okay, so now if there is a possibility to simplify, then simplify it. 8 1 ja 8, 8 2 ja 16. So see what left at the numerator, 1 into 1 what, 1, and 9 2 ja 18. So this is your required answer. ठीक है बच्चों. Next question number 4. Here you have given 9 divide 1 by 3. So again here is nothing but what, 1. So what, first fraction को as it is, divide को multiply में, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 by 1. So 9 3 जा 27 and 1 1 जा 1. So नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, 27 हो गया आपका. ठीक है, बट ऊपर होगा तो उसको लिखना है, जैसे यहाँ पे था ऊपर मैंने लिखा था. ठीक है, ये गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, आपको नीचे 1 है तो यहाँ भी आपको ऊपर नहीं लिखते, 18 लिख देते हैं आंसर, फिर आंसर मिलता नहीं है, उसका रॉन्ग हो जाता है, तो क्या फ़ायदा हुआ. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो आप. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. इन क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव गिवन फ्रैक्शन इन द मिक्स्ड फॉर्म. ओके, मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है. 5 whole 4 by 7 divide 1 whole 3 by 10. So first thing you have to do here, what you have to convert these mixed into a improper. पहली चीज़ जो आपको करनी है यहाँ पे क्या, पहले इसको आपको क्या करना है, मिक्स्ड में है, इसको आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. देन सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो. ठीक है, 5 7 जा 35, 5 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 39 by 7 and divide 10 1 ja 10 plus 3 13 by 10. So what, put the first fraction as it is, convert divide into multiply and 10 by 13. So here if there is a possibility to simplify then simplify it. अगर possibility है divisible होना का, या फिर जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं काटते हैं, ठीक है, तो अगर है possibility तो कर सकते हो आप. जैसे आपका नोमिनेटर है ये, आपका डिनोमिनेटर में ये है, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39. सो व्हाट यू गेट, 3 10 जा 30 by 7. तो आपका 30 by 7 इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स्ड में चेंज भी कर देना है आपको. ठीक है, 7 4 जा 28, 2 by 7, ये आपका इस तरह से. ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम टू सेम डिवाइड दिया हुआ, बस जहाँ बाय है वहाँ आपको डिवाइड का साइन देना है, बस और कुछ नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ. 32 by 1 whole 3 by 5. सो 32 यहाँ पे क्या दिया, डिवाइड, तो बाय मतलब डिवाइड. 5 1 जा 5 प्लस 3 8 by 5. सो हियर फर्स्ट फ्रैक्शन 32 by 1 मल्टीप्लाई 5 by 8, 8 4 जा 32, 4 5 जा 20 by 1, तो 20 आपका आंसर होगा. तीसरा बहुत सिंपल है. तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आर वेरी सिंपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 to 17, दिस इज द टोटली बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम. ओके, 4 to 17 जो है आपका क्या है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है. ठीक है, तो इसको वर्ड प्रॉब्लम है आपका, इसको बनाना है. तो फर्स्ट यू हैव गिवन हियर, दैट इज सी अ रोप ऑफ लेंथ, a rope of length 13 whole 1 by 2 meter has been divided into 9 pieces of the same length. What is the length of each piece? एक rope है, रस्सी है, जिसकी लंबाई 13 whole 1 by 2 मीटर दी हुई है, उसको 9 इक्वल पार्ट में काटा गया है, यानी डिवाइड किया गया है. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन पीस, ईच पीस का लेंथ कितना होगा. तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा. लेकिन डिवाइड करने से पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन यहाँ पे बड़ा वैल्यू है. ऑब्वियसली लेंथ ऑफ रोप इज लार्जर वैल्यू, और 9 में डिवाइड करना, तो इतना 13 whole 1 by 2 मीटर डिवाइड 9. ठीक है, तो हाउ टू राइट इन वर्ड्स, बिकॉज दिस इज योर वर्ड प्रॉब्लम, सो यू हैव टू सॉल्व इट इन अ प्रॉपर वे. सही तरीके से सॉल्व भी करना है इसको. सो फर्स्ट राइट हियर सॉल्यूशन, length of rope is
13 whole 1/2 meter. Rope is divided into 9 equal pieces. Okay, so here you have to find the length of each pieces. So length of each piece is what? 13 whole 1/2 divide 9 meter. So here 13 2 ja what? 26 plus 1 27/2 है ना, divide 9/1 and this is what? मीटर. 27/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो 1/9 हो जाएगा आपका. ठीक है बच्चों. अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा? 9 3 जा, तो क्या हो गया बच्चों? 3/2 मीटर. उसको चेंज करोगे आप तो 3/2 को चेंज करना रफ में, 2 1 जा 2. सो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 whole 1/2 मीटर. ये आपका आंसर हो गया, लेंथ ऑफ इच. ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीट सॉल्यूशन है ये आपका. देखो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है. सो इस तरह से हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम करना है. ठीक है, आपको मोर लार्जर वैल्यू गिवन रहेगा और आपको किसी एक का पूछेगा, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया आप लोग को. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसी तरह से है. आपको 18 बॉक्सेस है, आपका टोटल वेट इतना है, तो ईच बॉक्स का निकालना है. टोटल वेट इतना हो गया और बॉक्सेस कितना, नंबर ऑफ बॉक्सेस 18 है, तो ईच बॉक्सेस वेट ऑफ, तो आपको इसको इससे डिवाइड करना है. तो पहले इसको लिखना पड़ेगा डिवाइड इससे. सो सॉल्व एक्सरसाइज 2C 1 to 5 आप लोग बनाइए, और आगे कंटिन्यू हम लोग 6 to 17 विल सॉल्व इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो वीडियो को स्किप भी नहीं करना है, अच्छे से देखना है, समझना है. ठीक है, ओके क्लास, देन थैंक यू.